को जो कॉन्सेप्ट है that you know you can love more than one person at a time, is that what your character believes in? Is that what Vikram believes in? Apparently. और आप कितना अग्री करते हैं विक्रम की इस नोशन से? मेरे ख्याल से वो एक अपवर्डली मोबाइल यंग प्रोफेशनल है जो जैसा होता है आप अपने काम से ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स में कम ध्यान देते हैं बिकॉज द डिज़ायर टू become somebody and achieve a goal that you've set for yourself, unfortunately, is the journey of the character. And I think different times of your lives, love means different things, and Absolutely. same is the case with this guy. So now I don't want to give away the plot, और मैं आपको पिक्चर की सारी कहानी नहीं बताना चाहता, पर अपवर्डली मोबाइल गाय जिसे लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, थोड़ा बहुत शरारत करते हैं, तो शायद वो आज की डेट, आज के ज़माने में, आज के कल्चर में, विद ऑल द सोशल मीडिया एंड सो मच इंटरेक्शन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन एवरीबडी, वो थोड़ा चलता है. थोड़ा सा ऑनेस्ट और थोड़ा सा शरारती. आई वुड डिस्क्राइब यू एज दैट एक्चुअली. काफी कुछ ऑनेस्ट और काफी कुछ शरारती. तो ये इसमें ये विक्रम और रणदीप में जो लाइन है, वेरी थिन लाइन इन बिटवीन. देखिए, आप मुझे खामखा बदनाम मत कीजिए. तो मैंने कुछ नहीं बोला सर, दुनिया बोल. मैं क्या बोल रही हूँ. आप मुझे खामखा बदनाम मत कीजिए. हर एक कैरेक्टर जो एटलीस्ट मैं प्ले करता हूँ, वो कैरेक्टर मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढता हूँ, और विक्रम मुझे बहुत जल्दी मिल गया. Okay, coming to रोशनी. रोशनी बोले तो light, you know, beauty and like purity. Now Aditi, you are the kind of girl everybody wants to take home to their mothers. आपका जो character है इस movie में, how pure is रोशनी? What kind of a heart does she have when it comes to love? I think Roshni she's a open-hearted girl, free-spirited girl. She gives a lot of love because she believes in love, and I think she has a very strong belief in that perfect fairy tale notion of love, and that is how she is with her boyfriend Vikram. I think she can do anything for him, and she can lay her life down for him. But at the same time, I think what makes her a girl of today is that she is self-assured, and she takes charge of her destiny and of her choices, and she goes towards a path that frightens her, but is important to her. So she doesn't take anything if she thinks it's unjust, and I think that's what makes her pertinent to our generation. And I like that quality of Roshni because she's feminine, she's sensuous, she's a very girly girl, but at the same time she has an inner strength, a quiet strength, which is very beautiful. How far do you agree with Roshni as a person? आपका idea of love क्या है? रोशनी से कितना मेल खाता है? I think, well, evidently, I'm exactly that. My friends tease me a lot because they say you live in the 18th century, and I conform to a completely different world. As in, I believe in a completely different kind of worldview, and I have this little fairy tale land that I live in. But I also have a deep sense of reality, a deep sense of justice. Yeah, I am a lot like her, I think. I also love with all my heart, which can be quite dangerous for boys who don't want to commit. I would agree with her. ये real life में भी वैसी चूंचू हैं जैसी पिक्चर में. वैसी चूंचू हैं जैसी पिक्चर में. रणदीप define चूंचू. Boys find that very scary. नहीं ये चूंचू क्या होता है सर? काम का कान खाती रहती है हमेशा यार. कभी believe ही नहीं करती जो आदमी बोल रहा है. सोच समझ के बोल रहा है. Alright, और इंडिया के लेटेस्ट इम्पोर्ट हमारे पड़ोसी देश से, this gorgeous lass who's sitting next to me, Sara. Hello and welcome. Thank you very much. She moves also. She speaks and moves also. Sara speaks and She's moves. not just a porcelain doll. Yeah, really. Thank you very much. तो सारा, आपके किरदार का नाम है निशा. Yeah. यानी कि रात. रोशनी के एकदम ऑपोजिट. ये जब किरदार आपको समझाया गया कि ये आपको रोल प्ले करना है,
क्या सबसे पहला ख्याल आया आपके दिमाग में कि ये कर पाऊंगी मैं कि नहीं कर पाऊंगी निशा का किरदार? जब भी कोई रोल मेरे पास आता है तो एक इमेजिनेशन डेफिनेटली आती है कि आप उसे किस तरह से प्ले करने वाले हैं। बट विशेष काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे निशा के रोल को लेके। उनको चाहिए था कि निशा कुछ ना भी कहे तो भी उसकी आंखें और उसके एक्सप्रेशन सब कुछ कह दें। सो कुछ ऐसा रोल है मेरा, क्वाइट मिस्टीरियस एंड शी इज़ वेरी हॉट एट द सेम टाइम, शी इज़ वेरी कन्फ्यूज एट द सेम टाइम, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में जो समझ नहीं पा रही है। और फिर एक पॉइंट आता है, सो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो निशा थोड़ी सी ऐसी है। बेशक, और वही सवाल जो बाकी स्टार कास्ट से पूछा गया, निशा के किरदार से सारा कितना मेल खाती है? जब गो गेटर बस देख लिया बस वो चाहिए? काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जब आप मूवी देखेंगे मर्डर 3 तो उसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं, कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो एज अ पर्सन आई थिंक फॉर अ सेकेंड आप सोच सकते हैं कुछ चीज़ें। और मैं शायद ऐसी हूँ, मैं आई एम वेरी गुड एट द सेम टाइम, I can be bad at the same time. So I think it's very natural, yeah. मूवी में आपके साथ आदिति है और माशाअल्लाह आदिति राव हयादरी हैं। Yeah. और मतलब हैदरी Thanks Randeep, first time. मेरे को भी बहुत दिनों से कंफ्यूजन चल रहा है कि अच्छा। आदिति राव हयादरी है या आदिति राव हैदरी है। अच्छा, तो इनकी क्या है ना, बचपन में स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, पर वो है हैदरी। He's just making that up, isn't he? नहीं बट अच्छा चलिए, माशाल्लाह आदिति हैं जो हमारे मूवी गोअर्स की काफ़ी चहेती हैं। सेट पे जब आप आई और आपने देखा कि आपको इनके साथ काम करना है, ऑफ कोर्स पहले भी आपने देखा, तो कहीं लगा कि मैंने नहीं करना, she's too pretty, or will there be any like sparks on the set between the two leading ladies? No, I don't think so, because I think आप जब अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं तो आप सामने वाले पर्सन से ज़्यादा अपने रोल से सिंसियर होते हैं एज एन एक्टर। सो फॉर मी दैट वाज इम्पॉर्टेंट। और जब आपके सामने कोई अच्छा एक्टर होता है तो आप अपना रोल ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो आई थिंक वो चैलेंज जो होता है that is very good for everyone, and I was very happy that I work with Aditi. I think now we are very good friends as well. So yeah, I think हमने शायद बहुत दफ़ा फूड शेयर की है और मैं इसकी वजह से Story share करें, Sara is very funny. एक दूसरे का नमक खा लिया तुमने। एक दूसरे का नमक खा लिया, अब तुम लॉयल हो गए एक दूसरे से। क्या कर सकते हैं, तो या पर यही तो हमारी पिक्चर का थीम है कि जो आपको चेहरा दिखता है शायद वो चेहरा पूरा नहीं है। हाँ, तो ये दोनों लड़कियों के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो सोसाइटी बन रही है, वो उसके अंदर चौकीदार ठीक नहीं है। नहीं तो अच्छा चलिए फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। सेट पे आपने दोनों को देखा, साथ में आपने दोनों के साथ काम किया, कैसी है दोनों की केमिस्ट्री सेट के बीच में? पहली बार में ऐसा मतलब हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं हो रही है, हीरोइन और हीरोइन की केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है सेट पर। मैं जा रहा हूँ। कम ऑन। मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में एक काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन हुआ जिससे हमारी पिक्चर को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अभी किसको कर्ल्स अलाउड हैं और किसको नहीं है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लो। देखिए, एक बचपन से हमें एक फेरी टेल बेची जाती है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, साथ पढ़े, बड़े हुए, शादी की, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, बूढ़े हुए और मर गए। ये एक फेरी टेल बेची जाती है। जो भी एक यंग इंसान किसी भी रिश्ते में जुड़ता है या जुड़ने की चेष्टा रखता है, उसको ये फेरी टेल बेची जाती है। पर आप और हम सब जानते हैं कि आज की इस माहौल में, इस कल्चर में ये सच नहीं है। आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, फिर एक पे डिसाइड करते हैं कि ये मेरा पार्टनर फॉर लाइफ है, और वो होने के बावजूद क्या आप कभी भी उस रिश्ते के बाहर किसी और के बारे में सोचते भी नहीं है या किसी को देखते भी नहीं है? मेरे ख्याल से ये हिपोक्रेसी है और ये झूठ है। उस हिपोक्रेसी और उस झूठ को आज के डे एंड एज में कि एक जूता सबके पैर पे फिट नहीं होता, वो हमने हिपोक्रेसी, वो नोशन, वो डिकॉटमी जो हम सबको फेस करती है, जो कि एक रियलिटी होती है एक और हमारी फेरी टेल होती है,
वो हमने प्यार के बारे में मर्डर कर दी, जैसे पिछली सेंचुरी में साइंस के द्वारा गॉड को क्वेश्चन किया गया था। इस आज के दौर में 15 फरवरी वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद हम लव को क्वेश्चन करेंगे कि एक ही जूता, एक ही सेट, एक ही फेरी टेल क्या सब लोगों को फिट होती है? हमारा मानना है कि नहीं। Fabulous. ये जो रिकॉर्डिंग लेकर मैं इसको थोड़ा 10 बार सुनूंगी घर जाके। Amazing man. I've never heard love defined like that, Randeep. I was trying to deconstruct it actually. 15 तारीख को पता चलेगा कि पूरी की पूरी टीम का एफर्ट क्या है।